First lecture, the lecture before I have given you, I told you about some quadrilaterals. Quadrilaterals के साथ साथ हमने आपको बताया था convex polygons, concave polygons, regular polygons, irregular polygons, and something about what polygon is. Curved and close curved. Many things I told you before. So according to that, questions are based on that. First question, given here are some figures, and in that classify each of them on the basis किस पे? Simple curve, simple closed curve, polygon, concave, convex polygon and concave polygon, right? So we'll start with simple curve, right? With a simple curve we'll see, अच्छा first वाला simple curve है, yeah, this is simple curve, right? So we'll just put the number, right? Then next it is, क्या ये वाला simple curve है? Yes, तो 2 कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा curve है, right? Simple curve. Then third है क्या? No, it is not a curve. Fourth देखिए हम, fourth है क्या curve? No, it is not a curve. Fifth है क्या curve? Yes, तो हमने fifth भी बना लिया, right? Then हम देखते हैं sixth है क्या curve? Yes, sixth भी curve है, sixth भी कर दिया. Seventh देखिए क्या seventh curve है क्या? But yes, seventh is also a curve, right? And then we'll see eighth. अच्छा, yeah, eighth is also a curve, right? So the numbers 1, 2, 5, 6, 7, 8 are simple curve. Now simple closed curves. Now the curves which are closed, right? तो सबसे पहले 1, yeah, 2, yes, then it is 5, then it is 6, then it is 7, okay, and 8, no, ठीक है? It is not a simple closed curve. Simple closed curve I told you, which is totally closed, right? कहीं से भी उसका मुंह खुला नहीं होना चाहिए. But यहाँ empty है, यहाँ empty, right? Then in this also it is fully. ये अंदर जो part है वो पूरा closed है, ठीक है? इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है, right? Then it is fifth number also, sixth also, okay? Now we come to next, it is C, polygon. अब polygon क्या होते हैं? Polygon are the closed curves which are having some line segment, ठीक है? तो line segment किस किस के पास है? First वाले के पास, right? Second वाले के पास, right? ठीक है? और किसके पास है? Just that much. और किसी के पास नहीं है. अब now you will ask, मैम इसके पास भी तो line segments है, तो ये भी तो polygon हो सकता है? No, it is not a polygon because these are open. ये open है, यहाँ पर ये open curved है, ठीक है? So that's why it is not a polygon, ठीक है? Next convex polygon. अब convex polygon कौन कौन से? Convex polygon is जिसके angles बताया था ना, angles are there, so this is convex polygon, right? Then it is concave polygon. Concave polygon कौन कौन से होते हैं? जो cave बनाते हैं, right? Cave बनाते हैं, तो 1 नंबर ने बनाया है cave 1, ठीक है? और next वाला जो cave बनाया है ऐसा, जो cave कैसे बनता है? ऐसा, so ये है 4th नंबर, ठीक है? तो convex polygon and concave polygon, ठीक है? Then it comes to how many. The next question is how many diagonals does each of the following have. अब आपको बताना है कि किस क्वेश्चन में कितने diagonals हैं. First it is a convex quadrilateral. Now in the book it is not given convex quadrilateral क्या होता है. So I am telling you convex quadrilateral which have 4 sides, ठीक है? जिसके पास 4 sides होती हैं. And it can be more sides also, but जो convex हमारा जो quadrilateral है, it will have
टू डायगोनल्स, ठीक है, उसके पास दो डायगोनल होती हैं। नेक्स्ट इट इज रेगुलर हेक्सागन। ना रेगुलर हेक्सागन इज लाइक दिस। अब इसके पास डायगोनल्स कितनी होती है? 1 2 3। अब आप बोलोगे मैम 3 तो है, नो, दीज डायगोनल्स आर टोटल 9 इन नंबर। कैसे 9 होगी? ये जो बीच का मिड पॉइंट है, बिकॉज सारी लाइंस यहाँ पर आके इंटरसेक्ट होती हैं और कट करती हैं एक दूसरे को। सो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो जस्ट ट्रिपल हो जाते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, राइट? 6 आते हैं and then I'll tell you, then it is 7 is like that, okay, then it is 8 and then it is 9. Fine. So these are the regular hexagon diagonals. ठीक है? Now then it is a triangle. अब triangle में कितनी diagonals होते हैं? No. Triangle में कोई diagonal नहीं होता। Diagonal का मीन होता है कि एक साइड से दूसरे साइड पर जाना। दैट मीन्स इस साइड से यहाँ एक एज से दूसरा एज। अब अगर ट्राइंगल का मैंने ये एज देखा तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, दिस इज नॉट अ डायगोनल। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, दिस इज नॉट अ डायगोनल। वैसे ही इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बट इट इज नॉट अ डायगोनल। यहाँ से यहाँ जाएंगे, इट इज नॉट अ डायगोनल। यहाँ से यहाँ, नो। So triangle don't have any diagonals, right? Then we come to the written part of this line. So I'm writing the answers here. Please note it down. So answers are like this. That first of all convex, ठीक है? So we'll see convex. Convex में A वाला part convex. अब convex quadrilateral, तो convex quadrilateral का लिखेंगे हम a convex quadrilateral, convex quadrilateral, a convex quadrilateral has two diagonals. ठीक है? Next it is, this is done. Now next a regular hexagon, B वाला part, B वाले का आंसर है a regular hexagon. A regular hexagon has कितने diagonals? 9 diagonals. ठीक है? It has 9 diagonals, right? Practice this in your home. ठीक है? Now the next is triangle. A triangle has no diagonal. Okay, so कोई भी ट्राइंगल हो उसका कोई डायगोनल नहीं होता until and unless ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल होना चाहिए, राइट? तब उसके डायगोनल्स हम बना सकते हैं। ठीक है? So now your question number 1 is finished. Now this is 2 is also finished. Now we come to question number 3. The next question is question number 3. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? So first of all we should know that what is a convex polygon. Convex polygon जिसकी सारे angles को plus करो तो that is 360 degree, right? So we'll write the answer, the sum, right? We'll write the sum of measures of the angles, the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral is कितना है? is 360 डिग्री. That means अब यहाँ पर एंगल देख लेते हैं ABCD. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360 degree. Now the next part of the question is will this property hold
hold if the quadrilateral is not convex. तो क्या जब भी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो कि कुछ और है, कॉनकेव है, रेगुलर है या कुछ भी है, so will this property will go on? So right, so this is, so I'm telling you, ठीक है, this is a concave quadrilateral, this is a concave quadrilateral, and in this अगर आप प्लस करेंगे, right, if you plus the angles, okay, if you plus the angles then it is also 360 degree, right? तो इन सबको भी प्लस करोगे आप तो भी 360 डिग्री आंसर आता है. So the next part is yes, this property, yes, this property holds, ठीक है, holds in case of the quadrilateral, in case of a quadrilateral, ठीक है, in case of a quadrilateral is not convex, ठीक है. अब जब ये कॉन्वेक्स नहीं था तो भी 360 डिग्री एंगल्स हैं इसके, और कॉन्वेक्स हो गया तो भी 360 डिग्री इसके एंगल्स हैं, राइट. For the question number 4, we'll write that from the given table, clearly we observe that the sum of the interior angles of the polygon with n sides, n minus 2 multiplied by 180. So this is the first line, right? First line means from the given table, the table which I showed you earlier, clearly observe that the sum of interior angles, anyway, everywhere it is interior angles. ये जो हमारे interior angles हैं, right? ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनकी बात हो रही है, राइट. एवरीवेयर इंटीरियर एंगल्स आर देयर, सो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स ये हैं, ठीक है. अब इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद एन, एन मतलब ये साइड्स, राइट. तो साइड्स में हमारा एन आ जाता है, ठीक है. देन इट इज एन माइनस 2 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है. सो नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, माइनस करेंगे 2, दैट मीन्स माइनस करेंगे 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है. सो दिस वाज योर टेबल इन गिवन इन द बुक. अब इस टेबल का मीनिंग क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द टेबल. इसमें 3 साइड्स है, सो 3 साइड्स. अब एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जब 3 साइड्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 साइड्स में 60 60 60, दैट मीन्स 180 टोटल होता है, राइट. अब नेक्स्ट है, इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे 4 साइड्स है, तो मैंने 4 ही लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा है. देन अब 4 लिखेंगे हम कैसे, n की जगह. यहाँ पर कौन सा वाला हम करेंगे, यहाँ पर कौन सा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जो ऑलरेडी बुक में गिवन है, इट इज n माइनस 2. सो n माइनस 2, तो n माइनस 2 क्या है, n हमारा ये है, तो इट इज 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, राइट. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये 2 पार्ट्स बनाता है, ठीक है. तो फिर n माइनस 2, दैट मीन्स 2 पार्ट्स में आपने माइनस किया या फिर मतलब से शिफ्ट किया उसको, जैसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. नेक्स्ट है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के 5 साइड्स हैं, राइट. अब हमने इसमें क्या किया, n तो हमारा 5 है, बट क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में 3 साइड्स हैं, 1 2 3, ये जो हमने डॉटेड लाइंस के अलावा ये जो साइड्स बनाई है, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, मतलब 3 पार्ट्स हुए. तो ये हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 180. अब 3 आपका नंबर है, यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 है, क्योंकि ये 3 पार्ट्स है, और 5 हमारा साइड्स है, तो 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है. तो नेक्स्ट इट इज, अब नेक्स्ट है, इस क्वाड्रिलेटरल में 6 पार्ट्स है, सॉरी 6 साइड्स है. अब इस साइड्स के साथ कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है. ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब ये 4 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना. अब 4 मल्टीप्लाई बाय 180, या फिर क्या करोगे, n माइनस 2, तो n है हमारा 6, और माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे जितना होगा 2 माइनस किया हमने, और आंसर आएगा
मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। एंड विद दिस इट्स लाइक मल्टीप्लाई हमको हमेशा 180 से ही करना है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज वी राइट द आंसर्स। नाउ ए में पूछा है इफ कैन you say that about angle sum of the convex polygon with number of sides। अब number of sides उन्होंने 2, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, अब वो 7, 8, 9, 10 आगे दे रहे हैं। अब आप उसके बारे में ये फॉर्मूला बताओ कैसे आएगा, राइट। सो व्हाट विल राइट हेयर, ठीक है। अगर हेयर n इक्वल्स टू 7 मतलब सेप्टागन, ठीक है, हेप्टागन या फिर सेप्टागन। तो फिर हम लिखेंगे therefore the sum of the angles of a polygon, ठीक है, of a polygon के साथ क्या है, of sides 7, ठीक है, 7 साइड्स है उसकी। तो वो कैसे हो जाएगा, पहले आती है साइड मतलब n, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है ना, आ गया। नाउ नेक्स्ट इट इज विल टेक द आंसर, 7 माइनस 2 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 900 डिग्रीज, ठीक है। नाउ वी डू द बी पार्ट। बी वाले में बोला है कि here n is let n equals to 8। अगर n 8 होता मतलब ऑक्टागन, ठीक है, यहाँ पर सेप्टागन, यहाँ पर ऑक्टागन। अब ऑक्टागन में क्या होता, ऑक्टागन में भी यही सेम होता। therefore the sum of the angles of a polygon, therefore the sum of the angles of a polygon of 8 sides क्या होगा, ये होगा n माइनस 2, n हमारा 8 है, माइनस 2 किया मल्टीप्लाई बाय 180 किया, तो आंसर आ गया हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 180, राइट। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 180 तो आएगा 1080 डिग्रीज, ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड एंड द सी पार्ट, राइट। ये टोटल इसी टेबल पे बेस्ड है, सो वी राइट द थर्ड पार्ट ऑल्सो। हम थर्ड पार्ट लिखते हैं। सी पार्ट इज, सी इज हेयर n equals to, n equals to 10। अगर नंबर ऑफ साइड्स 10 है मतलब कि डेकागन, क्या होता है ये 10 साइड्स वाला, डेकागन, राइट। अब डेकागन में हमको देखना है, we'll write therefore the sum of the angles of a polygon of sides 10 क्या होगा, n minus 2 multiply by 180, so it is 10 है हमारा, n minus 2 multiply by 180 degree, so it is 8 multiply by 180 degree, so what will be the answer? Answer will be 1440, right? Now what's the next part? The next part is, next they have asked that what is, now what they are thinking कि डी पार्ट में अब वो क्या पूछते हैं, राइट। अब डी पार्ट में उन्होंने पूछा कि n, now just they have given the letter n, right। अब लेटर n दिया है, so what we will do, only letter n is given। n का मीनिंग में n होता, that means आपको नंबर ऑफ साइड्स उन्होंने जैसे नंबर्स में दिया था 1 2 3 4 5,
अब उन्होंने दे दिया है n मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है n की जगह. सो वील राइट द डी पार्ट. ठीक है, डी पार्ट में उन्होंने बोला n, सो वी विल राइट क्लियरली from the given table, what we have seen, टेबल में हमने देखा, it is observed that the number of triangles, is too less than the number of sides of a polygon. ठीक है, then what we will write, therefore the polygon has n sides. n मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. n sides, the number of sides, the number of triangles, formed will be n minus 2. ठीक है ना. Then since अब क्या हुआ, since the angles, the sum of angles of a triangle equals to 180 degree. ठीक है, एक ट्राइंगल के सारे सम ऑफ द एंगल्स होते हैं 180 डिग्री. सो इट्स लाइक दैट कि n minus 2 multiply by 180 will be your answer, right? Now just a quick recap for this. Clearly from the given table it is observed that the number of triangles, what I have done, मैंने जो बनाया था उसमें फिगर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये हमारा फिगर है, तो इट इज लाइक दिस. अब यहाँ पर एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. 3 ट्राइंगल हो गए. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 2 लेस देन, अगर ये हमारे ट्राइंगल्स 3 बन रहे थे, माइनस करेंगे हम इसमें से 2, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. ठीक है, 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि हम देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5. सो 5. ठीक है, 5 minus 2 तो आ जाएंगी 3. आ गई ना 3, आया ना 3 पार्ट्स मतलब 3, राइट. अब उसको हम n minus 2 n minus 2 multiply by 180 कर देंगे, राइट. सो दिस इज योर टोटल आंसर. ओके, now we come to the